Chapter 4 From the Diary of Anne Frank. एनी फ्रैंक की डायरी से। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। एनी रीस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929, February or March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनीरीस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 से फरवरी या मार्च 1945। यह एक जर्मन में पैदा हुई जूइश लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन कब्जे के दौरान एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छिपकर लिखा था। Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. परिवार के साथ ये नीदरलैंड एम्स्टर्डम में चली गई थी, लेकिन जब नाजी कब्जे ने नीदरलैंड में विस्तार किया तो वे फंस गए थे। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1992 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जैसे जैसे जूइश आबादी के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ता गया, परिवार छुपने चला गया। फिर 1942 में उनके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में छुप गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. 2 साल बाद छुपने के बाद समूह ने उनको धोखा दिया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां एनी की बहन मार्गोट फ्रैंक के दिनों में बर्गन बेल्सन में टाइफस से मृत्यु हो गई। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. उसके पिता ऑटो समूह में इकलौते बचने वाले एम्स्टर्डम लौट गए द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, और उन्हें पता चला कि एनी की डायरी सुरक्षित है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. यह मानते हुए कि यह एक अनूठा रिकॉर्ड था, उन्होंने इसे प्रकाशित करने के लिए पब्लिश कर दिया और इस बुक का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल दे दिया। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life for 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. यह डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दिया था और 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 की अंतिम प्रतिष्ठित तक उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book.
यह डायरी फिर डच भाषा से अन्य भाषाओं में भी लिखी गई और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary. डायरी पर आधारित कई फिल्में, टेलीविज़न और नाट्य प्रस्तुतियाँ और यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बन चुका है। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. एक व्यवहारिक दिमाग के के रूप में वर्णित डायरी नाज़ी कब्ज़े के तहत दैनिक जीवन की एक अंतरंग परीक्षा प्रदान करती है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Anne Frank होलोकॉस्ट पीड़ितों में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित लोगों में से बन गई हैं। Activity. First, do you keep a diary? Given below under A are some terms we use to describe a written record of personal experience. Can you match them with their description under B? You may look up the terms in a dictionary if you wish. क्या आप डायरी रखते हैं? नीचे कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हैं जो व्यक्तिगत अनुभव के लिखित रिकॉर्ड का वर्णन करने के लिए करते हैं। क्या आप बी के अंतर्गत उनके विवरण के साथ उनका मिलान कर सकते हैं? कॉलम ए, फर्स्ट जर्नल, सेकंड डायरी, थर्ड लॉग, फोर्थ मेमोरी। बी, a book with a separate space or page for each day in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day. प्रत्येक दिन के लिए एक अलग स्थान या पन्ना वाली एक पुस्तक जिसमें आप अपने विचार लिखते हैं और भावनाओं या फिर उस दिन क्या हुआ है। A full record of a journey, a period of time or an event written every day. यात्रा समय की अवधि या एक घटना का पूरा रिकॉर्ड हर दिन लिखा जाता है। A record of a person's own life and experiences, usually a famous person. किसी व्यक्ति के स्वयं के जीवन और अनुभव का रिकॉर्ड, ज़्यादातर एक प्रसिद्ध व्यक्ति। A written record of events with times and days, usually official. समय और तिथियों के साथ घटनाओं का एक लिखित रिकॉर्ड, आत्म तौर पर आधिकारिक। Second, here are some entries from personal records. Use the definition above to decide which of the entries might be from a diary, a journal, a log, or a memoir. यहाँ व्यक्तिगत रिकॉर्ड से कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। ऊपर दी गई परिभाषाओं का उपयोग करते हुए यह तय कीजिए कि यह डायरी या जर्नल या लॉग या फिर मेमो है। फर्स्ट, आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम मॉम। I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? Answer. मैं आज बहुत लेट उठी और अपनी माता से डांट भी खा ली। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने फीफा वर्ल्ड कप मैचेस कैसे नहीं देखा। सेकेंड, 10:30 AM went to the office of the director. 1 PM had lunch with chairman.
5:45 p.m. Receive Rahul at the airport. 9:30 p.m. Dinner at home. Answer. Third, the ride to Ooty was uneventful. We rested for a while every 50 km or so and used the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Ooty we went on to Bangalore. What a contrast! The noise and the pollution of this once beautiful city really broke my heart. आंसर। ऊटी की सवारी असमान थी। हमने हर 50 किलोमीटर में कुछ देर आराम किया और समय का उपयोग अपने हैंडीकैम के साथ शानदार पिक्चर कैद करने में कर दिया। ऊटी से हम बेंगलोर चले गए। यह कभी एक खूबसूरत शहर के शोर और प्रदूषण ने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया। Fourth, this is how Rajkumar found me. All went and Raj outside RK studio. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker. And he cast me on the spot. The rest, as they say, is history. इस तरह राजकुमार ने मुझे पाया। RK स्टूडियो के बाहर सब गीला और फटा हुआ था। वह तब मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे और उन्होंने मुझे मौका पर ही कास्ट कर दिया और बाकी जैसा कि सब कहते हैं इतिहास है। Writing in a diary is really strange experience for someone like me. डायरी में लिखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वाकई में बहुत अजीब अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the mushings of a 13-year-old schoolgirl. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मुझे ना ही किसी और को किसी तरह से 13 साल की स्कूली छात्रा के संगीत में दिलचस्पी होगी। Oh well, it doesn't matter. ठीक है, कोई बात नहीं। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मुझे लिखने का मन करता है और मुझे अपने सीने से हर तरह की चीज़ें निकालने की और भी अधिक आवश्यकता है। Paper has more patience than people. कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों में से एक में सोचा था जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और घर पर अपने हाथों में अपना चिन लेकर बैठी थी, बेसुध और सोच रही थी कि मुझे अंदर रहना चाहिए या फिर बाहर जाना चाहिए। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as my diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of a difference. मैं अंत में वही रही जहाँ मैं थी, यह सोचकर कि हाँ, कागज़ में अधिक धैर्य होता है और चूँकि मैं किसी और को इस नोटबुक यानी कि डायरी को पढ़ने नहीं दूँगी जब तक कि मुझे कभी एक वास्तविक दोस्त नहीं मिलता, इससे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं उस बिंदु पर वापस आ गई थी जिसने मुझे पहली जगह में एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। मेरा कोई दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly. Since no one will believe that the 13-year-old girl is completely alone in this world, मुझे इसे और स्पष्ट रूप में रखने दीजिए, क्योंकि किसी को यह विश्वास नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में एकदम अकेली है। एंड आई एम नॉट। और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मेरे प्यारे माता पिता और 16 साल की बहन है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली। मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। प्यार करने वाले चाची और एक अच्छा घर। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नहीं, ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। All I think about when I'm with friends is having a good time. जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ तब मैं यही सोचती हूँ कि मैं उनके साथ अच्छा वक्त बिता रही हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं सामान्य रोज़ाना चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाती। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे हैं और यही समस्या है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change. किसी भी मामले में चीज़ें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि वह चेंज भी नहीं होगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना चालू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. मेरी कल्पना में उस दोस्त जिसका मैंने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है उसकी छवि बढ़ाने के लिए मैं इसमें फैक्ट्स उस तरीके से नहीं लिखना चाहती हूँ जैसे ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं इसे किटी कहना चाहती हूँ। कन्फाइन, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। कन्फाइन का अर्थ है निजी तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी निजी बात बताना जिस पे आप भरोसा करते हैं। Oral comprehension check. Question 1. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? डायरी में लिखना ऐसे एनी फ्रैंक के लिए एक अजीब अनुभव क्यों था? Question 2. Why does Annie want to keep a diary? एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? Question 3. Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? एनी ने क्यों सोचा कि वह लोगों की तुलना में अपनी डायरी में ज़्यादा
लिख सकती हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I did better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्योंकि किटी में लिखी गई कहानियों को का एक शब्द भी कोई समझ नहीं पाएगा अगर मैंने इसे ऐसे ही लिख दिया। इसलिए मैं अपने जीवन के बारे में एक संक्षिप्त स्केच प्रदान करूंगी। मुझे यह करना पसंद नहीं है। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिता सबसे प्यारे पिता जिन्हें मैंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वह 36 साल के नहीं हो गए और मेरी माँ तब 25 साल की थी। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गॉट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में जन्म लिया था। I was born on 12 June 1929. मैं 12 जून 1929 में पैदा हुई थी। I lived in Frankfurt until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही थी जब तक मैं 4 साल की थी। My father immigrated to Holland in 1933. मेरे पिता 1933 में होलैंड में शिफ्ट हो गए थे। My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with her grandmother. मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक मेरे पिता के साथ सितंबर में होलैंड रहने चली गई थी। मार्गॉट और मुझे अपनी दादी के यहाँ आचन में रहने भेज दिया था। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन द फैब्री। मार्गॉट हॉलैंड दिसंबर में गई और मैं फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। जब मुझे जन्मदिन के तोहफे के रूप में टेबल पर रख दिया था मार्गॉट के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरुआत की। आई स्टेड देयर until I was 6, at which time I started in the first form. मैं 6 साल की उम्र तक वहाँ रही। उस समय मैंने पहले फॉर्म में शुरुआत की थी। In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. मैं जब छठे फॉर्म में गई वहाँ मेरी हेडमिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. साल के ख़त्म होने पर दोनों के आँखों में आंसू थे जैसे ही हमने एक दूसरे से विदा लिया। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have a operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में दादी की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत थी। इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़े बहुत उत्सव के साथ निकला। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। दादी की
मृत्यु जनवरी 1942 में हुई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को नहीं पता मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उन्हें कितना प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. 1942 के बर्थडे उत्सव का उद्देश्य दूसरे की भरपाई करना था और बाकियों के साथ दादी की मोमबत्ती जलाई गई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम चारों अभी भी अच्छे से रह रहे हैं और यह लाता है मुझे 20 जून 1942 के वर्तमान तिथि तक और मेरी डायरी के समर्पण तक। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट, वाई डस एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों प्रदान करती हैं? वॉट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर? आपको क्या बताता है कि एनी अपनी दादी से प्यार करती थी? Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boot. प्रिय किटी, हमारी पूरी कक्षा घबरा रही है, डर रही है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. इसकी वजह यही है कि forthcoming meeting यानी कि आगामी बैठक है जिसमें शिक्षक यह तय करते हैं कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा और कौन वापस इसी फॉर्म में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा दाव लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have take their entire holiday saving on their bet. GN और मैं अपने पीछे दो लड़के CN और जैक्स जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को अपने दाव पर लगा दिया है उन पर हंस रहे हैं। From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. सुबह से रात तक बस तुम पास होने वाले हो। नहीं, मैं नहीं होऊंगा। तुम होगे। नहीं, मैं नहीं होगा। बस यही चल रहा है। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. जी की बेनती भरी निगाहें और मेरी गुस्सा भी उन्हें शांत नहीं कर सकता। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth. यदि आप मुझसे पूछे तो बहुत सारे लोग कम से कम 1/4 बच्चों को इसी क्लास में रखना चाहिए, मगर शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी है। सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी है। I am not so worried about my girlfriends and myself. मैं अपने और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में इतना चिंता नहीं करती हूँ। We will make it. हम कर सकते हैं। The only subject I am not sure about is maths. एकमात्र विषय जिस पे मुझे भरोसा नहीं है वह मैथ्स है। Anyway, all we can do is wait. वैसे भी हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। Until then, we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि हिम्मत मत हारो।
I get along pretty well with all my teachers. मेरा सभी शिक्षकों से अच्छा व्यवहार है. There are 9 of them, 7 men and 2 women. यहाँ 9 शिक्षक हैं, 7 पुरुष और 2 महिला. Mr. Kessing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. मिस्टर कैसिंग, जो कि मैथ्स पढ़ाते थे, मुझसे सदियों से नाराज़ थे क्योंकि मैं कई बार चेतावनी के बाद भी बहुत बातें करती थी. After several warnings, he assigned me extra homework. कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क सौंपा. An essay on the subject, a chatterbox. एक चैटरबॉक्स पर निबंध लिखना था. A chatterbox? What can you write about it? A chatterbox? इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? I did worry about that later. I decided. मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी, मैंने सोचा. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने अपनी नोटबुक में टॉपिक लिखा और उसे अपने बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क पूरा किया तो निबंध के बारे में नोट पर मेरी नज़र गई. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं उसके बारे में सोचने लग गई और साथ में मैं अपने कलम के टिप को चबा रही थी. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. इस बारे में कोई भी लिख सकता था, पर मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे बात करने की आवश्यकता को साबित कर सकूं. I thought and suddenly I had an idea. मैंने सोचा और फिर अचानक से आइडिया आया. I wrote 3 pages Mr. Kessing had assigned me and was satisfied. मिस्टर केसिंग ने जो मुझे पेजेस दिए थे, मैंने उनके बारे में 3 पेजेस लिखा और मैं संतुष्ट थी. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. मैंने तर्क दिया कि बात करना एक छात्र का गुण है और मैं इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूँगी, पर मैं इस आदत से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी माँ भी इतना ही बोलती है जितना मैं बोलती हूँ. विरासत में मेरे लक्षणों के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. Mr. Kessing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. Mr. Kessing को मेरे द्वारा दिए गए तर्कों पर हंसी आई, पर जब मैं उनके अगले पाठ के माध्यम से में बात करने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने को दे दिया. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. इस बार उसका टॉपिक an incorrigible chatterbox था. I handed it in, and Mr. Kessing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने इसे सौंप दिया और मिस्टर केसिंग को
2 पाठों तक कोई शिकायत ना थी। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. पर तीसरे पाठ के अंत तक उन्होंने काफ़ी सह लिया था। Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. Anne Frank, कक्षा में बात करने के सज़ा में एक ऐसे लिखिए जिसका टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स है। द क्लास roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. पूरी क्लास हंसने लगी, मैं भी हंसी। हालांकि चैटरबॉक्स के टॉपिक में मैं अपनी सरलता को लगभग समाप्त कर चुकी थी। It was time to come up with something else, something original. यह सही वक्त था कि कुछ नया हट के लेकर आऊँ। My friend, Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरा दोस्त सेन, जो कि कविता में अच्छा था, कविता में शुरू से अंत तक निबंध लिखने में मेरी मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से झूम उठी। मिस्टर केसिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I did make sure the joke was on him. मिस्टर केसिंग इस विषय से मुझ पर एक मजाक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यह मजाक उन पर बना दूंगी। I finished my poem and it was beautiful. मैंने अपनी कविता पूरी की और वह बहुत सुंदर थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. यह कविता एक बतख की माँ और 3 बतखों के साथ एक पिता हंस के बारे में था, जिन्हें पिता ने काट लिया था क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शोर मचाया था। Luckily, Mr. Kessing took the joke in the right way. सौभाग्य से मिस्टर केसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने यह कविता पूरे क्लास में पढ़ी, अपनी टिप्पणी को जोड़कर, और अन्य क्लासों में भी पढ़ी। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई है और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया है। On the contrary, Mr. Kessing's always making jokes these days. इसके विपरीत मिस्टर केसिंग इन दिनों हमेशा मजाक करते रहते हैं। Yours, Annie. तुम्हारी एनी। Extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. एक युवा लड़की की डायरी से चुना हुआ मामूली अनुकूलन के साथ। Oral comprehension check. First, why was Mr. Kessing annoyed with Annie? What did he ask her to do? मिस्टर केसिंग एने से क्यों नाराज़ थे? उन्होंने उससे क्या करने के लिए कहा? सेकेंड, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे? एने ने अपने निबंध में उसे एक चैटर बॉक्स होने को कैसे उचित ठहराया? डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर केसिंग एक सख्त शिक्षक थे? फोर्थ, व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास? किस वजह से मिस्टर केसिंग ने एने को कक्षा में बात करने की अनुमति दी? थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. First, was Anne right when she said that
the world would not be interested in mushing off a 30-year-old girl. क्या एने सही थी जब उन्होंने कहा कि दुनिया एक 13 साल की लड़की के जीवन के बारे में दिलचस्पी नहीं लेगी? Second, there are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Before you read अनुभाग में कुछ डायरी और जर्नल्स के उदाहरण दिए हैं. Compare these with what Annie writes in her diary. एनी ने जो अपने डायरी में लिखा है उसको इन डायरी से तुलना कीजिए. What language was the diary originally written in? यह डायरी पहले कौन से भाषा में लिखी थी? In what way is Annie's diary different? एनी की डायरी किस प्रकार से अलग है? Third, why does Annie need to give a brief sketch about her family? एनी को अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त विवरण क्यों देना पड़ा? Does she treat Kitty as an insider or as an outsider? क्या वह किटी को परिवार का सदस्य या फिर बाहरी व्यक्ति मानती थी? Fourth, how does Annie feel about her father, her grandmother, Mrs. Cooper's, and Mr. Kessing? What do these tell you about her? एने अपने पिता अपनी दादी के बारे में कैसे महसूस करती थी? मिसेस कूपर्स और मिस्टर केसिंग, यह आपको उसके बारे में क्या बताता है? Fifth, what does Annie writes in her first essay? एने ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा? Sixth, Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Kessing unpredictable? How? एने कहती है कि शिक्षक सबसे अप्रत्याशित है. मिस्टर केसिंग क्या अनप्रिडिक्टेबल है? कैसे? सेवेंथ, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट टेल अबाउट एनी फ्रैंक एज अ पर्सन? यह कथन एनी फ्रैंक के बारे में क्या बताते हैं? फर्स्ट, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर. हमें लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे हैं और यही समस्या है. यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते. सेकेंड, आई डोंट वॉन्ट टू jot down the facts in this diary the way most people would, but I want the diary to be my friend. मैं इस डायरी में फैक्ट्स को अन्य मनुष्यों की तरह नहीं लिखना चाहती, बल्कि मैं अपनी डायरी को अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ. थर्ड, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन February when I was sprung down on the table as a birthday present for Margot. मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई और मैं फरवरी में गई जब मुझे मार्गेट के जन्मदिन पर एक तोहफे के रूप में टेबल पर रख दिया. फोर्थ, इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth. अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे क्लास के 1/4 बच्चों को आगे नहीं भेजना चाहिए, मगर शिक्षक इस दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी हैं. Fifth, anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of doubting. कोई भी इस टॉपिक के बारे में लिख सकता था, पर मुझे
अपने तथ्यों के माध्यम से ये बताना था कि बातचीत ज़रूरी है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों को देखें। हेड मिस्ट्रेस, नोटबुक। लॉन्ग अवेटेड, स्टिफ्ड बैक्ड, होमवर्क, outburst. These words are compound words. They are made up of two or more words. यह शब्द कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। यह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड वर्ड्स कैन बी नाउन, हेड मिस्ट्रेस, होमवर्क, नोटबुक, आउटबर्स्ट। कंपाउंड वर्ड्स संज्ञाएं हो सकती है जैसे कि हेड मिस्ट्रेस, होमवर्क, नोटबुक, आउटबर्स्ट। एडजेक्टिव्स लॉन्ग अवेटेड, स्टिफ बैक। विशेषण जैसे लॉन्ग अवेटेड एंड स्टिफ बैक। वर्ब्स स्लीप वॉक, बेबी सिट। कार्य जैसे स्लीप वॉक, बेबी सिट। मैच द कंपाउंड वर्ड्स अंडर ए with their meaning under B. Use each in a sentence. Column A, heartbreaking, homesick, blockhead, long abiding, overdue, daydream, breakdown, output. Column B, obeying and respecting the law. Think about recent things, forgetting about the present. Something produced by a person, machine or organization. Producing great sadness. An occasion when vehicle machines stop working. An informal word which means a very stupid person. Missing home and family very much. Do something to an excessive degree. Second, phrasal verb. A phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. एक phrasal verb वाक्यांश क्रिया एक क्रिया है जिसके बाद एक preposition पूर्व सर्ग या adverb क्रिया विशेषण होता है। Its meaning is often different from the meanings of its part. इसका अर्थ अक्सर इसके भागों के अर्थ से भिन्न होता है। Compare the meanings of the verbs get on and run away in. नीचे A और B में दिए गए phrasal verbs में तुलना कीजिए। You can easily guess their meanings in A, but in B they have special meaning. आप A में उनके अर्थों का अनुमान लगा सकते हैं, पर B में उनके अर्थ कुछ अलग हैं। A. She got on at Agra when the bus stopped for breakfast. Dev Anand ran away from home when he was a teenager. B. She is eager to get on in life. Get on means succeed. The visitor ran away with the match. Ran away, won easily. Some phrasal verbs have three parts: a verb followed by an adverb and a preposition. कुछ वाक्यांश क्रियाओं के तीन भाग होते हैं: क्रिया के बाद क्रिया विशेषण और एक पूर्वांश। C. Our car ran out of petrol just outside the city limits. शहर की सीमा के बाहर हमारे कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया। D. The government wants to reach out to the people with this new campaign. सरकार इस नए कैंपेन के साथ लोगों तक पहुंचना चाहती है। The text you have just said has a number of phrasal verbs commonly used in English. आपके द्वारा अभी अभी पढ़े गया
पार्ट में अंग्रेज़ी में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कई वाक्यांश क्रियाएँ हैं। Look up the following in a dictionary for their meanings. निम्नलिखित को उनके अर्थों के लिए एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश में देखें। Enter the entry for the italicized words. Italicized शब्द के नीचे देखें। First, plung in. Second, kept back. Third, ramble on. Fourth, get along with. Now find the sentences in the lesson that have the phrasal verbs given below. अब पार्ट में उन phrasal verbs को ढूंढिए जो कि नीचे दिए गए हैं। Match them with their meaning. उनके अर्थों के साथ मिलान करें। You have already found out the meaning of some of them. आपको कुछ के अर्थ पहले से ही पता है। Are their meanings the same as that of their parts? क्या उनके अर्थ उनके भागों के अर्थ के समान हैं? Note that two parts of the phrasal verb may occur separated in the text. ध्यान दें कि एक phrasal verb के दो भाग पार्ट में अलग हो सकते हैं। Phrasal verb. First, sprung in. Second, kept back. Third, move on. Fourth, ramble on. Fifth, get along with. Sixth, calm down. Seventh, stay in. Eighth, make up for. Ninth, hand in. Meanings: speak or write without focus. Stay indoors. Make them remain quiet. Have a good relationship with. Give an assignment or homework to a person in authority or the teacher. Compensate. Go straight to the topic. Go to the next grade. Not promoted. Idioms. मुहावरे. Idioms are a group of words with a fixed order and a particular meaning, different from the meanings of each of their words put together. मुहावरे एक क्रम वाले शब्द के समूह होते हैं और उनके प्रत्येक शब्द के अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ होता है जब वो एक साथ रखे जाते हैं। Phrasal verb can also be idioms. They are said to be idiomatic when their meaning is unpredictable. Phrasal verbs भी मुहावरे हो सकते हैं। जब उनके अर्थ का पता नहीं होता तब उन्हें idiomatic कहते हैं यानी मुहावरेदार कहते हैं। For example, do you know what it means to meet one's match in English? उदाहरण के तौर पर क्या आपको पता है meet one's match का इंग्लिश में क्या अर्थ है? It means to meet someone who is as good as oneself or even better in some skill or quality. इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो उतना ही अच्छा है जितना आप है या फिर और बेहतर है। Do you know what it means to let the cat out of the bag? Can you guess? क्या आप जानते हैं कि let the cat out of the bag का क्या अर्थ है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? 1. Here are few sentences from the text which have idiomatic expressions. Can you say what each means? You might want to consult a dictionary first. यहाँ पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें
मुहावरेदार यानी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं। क्या आप इनके मतलब बता सकते हैं? हो सकता है आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़े। फर्स्ट, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वाकिंग इन इट्स बूट्स। Second, until then, we keep telling each other not to lose heart. Third, Mr. Kessing was annoyed with me for ages because I talked so much. Fourth, Mr. Kessing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. 2. Here are a few more idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in a sentence of your own. यहाँ पाठ से कुछ और idiomatic expression दिए गए हैं। उन्हें खुद के वाक्य बनाने में प्रयोग करें। First, caught my eye. First, caught my eye. Second, he'd had enough. He'd had enough. Third, laugh ourselves silly. Laugh ourselves silly. Fourth, can't bring myself to. Can't bring myself to. Do you know how to use a dictionary to find out the meanings of idiomatic expression? क्या आपको पता है कि डिक्शनरी का प्रयोग कैसे करना है idiomatic expression का मतलब ढूंढने के लिए? Take for example the expression caught my eye in the story. उदाहरण के लिए कहानी में आए गए expression caught my eye लेते हैं। Where under which word would you look for it in the dictionary? किस शब्द के नीचे आप इसका मतलब ढूंढेंगे डिक्शनरी में? Look for it under the first word. इसके पहले शब्द के नीचे ढूंढें। But if the first word is a grammatical word like a, the, for, etc., then take the next word. लेकिन अगर पहला शब्द एक ग्रामेटिकल शब्द है यानी कि वाक्यानिक शब्द है, जैसे के लिए अ, द, फॉर, तब हम उसके अगले शब्द को लेते हैं। That is, look for the first meaningful word in the expression. यानी कि हमें ऐसे शब्द को लेना है जिसका कोई मतलब हो। इन आर एग्ज़ाम्पल इट इज़ द वर्ड कॉट। हमारे उदाहरण में वह वर्ड कॉट है। बट यू वोंट फाइंड कॉट इन द डिक्शनरी बिकॉज इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैच। मगर आपको डिक्शनरी में कॉट शब्द नहीं मिलेगा क्योंकि वह कैच का पास्ट टेंस यानी भूतकाल है। यू विल फाइंड कॉट लिस्टेड अंडर कैच। आपको कॉट कैच के नीचे मिलेगा। सो यू मस्ट लुक अंडर कैच फॉर द एक्सप्रेशन कॉट माई आई। तो आपको कैच के नीचे ही अंदर ही caught my eye expression को ढूंढना होगा। Which other expression with catch are listed in your dictionary? कैच को देखकर कौन से अन्य एक्सप्रेशन आपको डिक्शनरी में मिलते हैं? Note that a dictionary entry usually first gives the meaning of the word itself and then gives a list of idiomatic expression using that word. ध्यान दें कि डिक्शनरी में पहले उस शब्द का मतलब दिया जाता है, फिर उससे उत्पन्न हुए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन
भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी दिस पार्शियल एंट्री फॉर द नाउन आई फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी 2005। उदाहरण के लिए ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी 2005 से नाउन आई यानी संज्ञा आँख के लिए प्रविष्टि को पढ़ें। आई नाउन पार्ट ऑफ द बॉडी either of the two organs on the face that you see with. The suspect has a dark hair and a green eye. संज्ञा शरीर का भाग, चेहरे के दो अंगों में से कोई एक जिससे आप देख रहे हैं। सस्पेक्ट के काले बाल और हरे रंग की आँख हैं। एबिलिटी टू सी Seeing, the ability to see. A surgeon needs a good eye and a steady hand. देखने की क्षमता, एक सर्जन को अच्छे हाथ और स्थिर हाथ की आवश्यकता होती है। वे ऑफ सीइंग 4. See usually singular. A particular way of seeing th. He looked at the design with the eye of an engineer. देखने का तरीका, आमतौर पर सिंगुलर। देखने का एक विशेष तरीका, उसने एक इंजीनियर के तरीके से उस डिज़ाइन को देखा। ऑफ needle 5c. The hole in the end of the needle that you put the thread through. सुई का, सुई के सिरे का वह छोटा छेद जिसमें आप धागा डालते हैं। Idiom be all eyes to be watching somebody or something carefully and with a lot of interest before or in front of somebody's very eyes in somebody's presence. In front of somebody. He had seen his life's work destroyed before his very eyes. Be up to your eyes in something to have a lot of something to deal with. We are up to our eyes in work. सभी की आँखों में, किसी चीज़ या किसी को बहुत ध्यान से देखना। Before or in front of somebody's eyes. किसी की आँखों में के सामने, किसी के सामने। उसने अपने जीवन के काम को अपने आँखों के सामने बर्बाद हुए देखा। Be up to your eyes in something. निपटने के लिए बहुत कुछ है, हमें अपने काम को निपटाना है। You have read the expression not to lose heart in this text. आपने not to lose heart expression को पढ़ा है। Now find out the meanings of the following expression using the word heart. अब निम्नलिखित एक्सप्रेशन का मतलब ढूंढिए हार्ट शब्द का यूज़ करके। यूज़ ईच ऑफ देम इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। उनमें से हर एक का प्रयोग करके अपने सेंटेंस बनाएं। फर्स्ट, ब्रेक समबडीज़ हार्ट, किसी का दिल तोड़ना। सेकेंड, क्लोज और डियर टू हार्ट, दिल के करीब, प्रिय। थर्ड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, दिल से। फोर्थ, हैव अ हार्ट। फिफ्थ, हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन, कठोर दिल का। सिक्स्थ, योर हार्ट गोज़ आउट टू समबडी। Contracted forms. When we speak, we use contracted forms or short forms such as these. अनुभंगित forms प्रपत्र,
जब हम बोलते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स या फिर छोटे फॉर्म्स जैसे कि कांट फॉर कैन नॉट, आई वुड फॉर आई वुड और आई हैड, शी इज़ फॉर शी इज़. Notice that the contracted forms are also written with the apostrophe to show a shortening of the spelling or not, would or is, as in the above example. ध्यान दें कि contracted form के उदाहरण में स्पेलिंग शॉर्ट करने के लिए apostrophe का प्रयोग किया गया है. Writing a diary is like speaking to oneself. डायरी लिखना खुद से बात करने जैसा है. Plays and often novels also have speech in written form. नाटकों या फिर नॉवल में भी written form में speech यानी भाषण होता है. So we usually come across contracted forms in diaries. इसलिए डायरीज़ में हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखने को मिलता है. डायरीज़ या फिर नाटक या नॉवेल्स. 1. Make a list of the contracted form in the text. Rewrite them as full forms of 2 words. कहानी में दिए गए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का लिस्ट बनाइए और उनके फुल फॉर्म लिखिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव इक्वल्स टू आई हैव. उदाहरण के लिए आई एप्रोस्ट्रॉफी वी ई इक्वल्स टू आई हैव. 2. We have seen that some contracted form can stand for 2 different full forms. हमने देखा कि कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के 2 फुल फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि आई एप्रोस्ट्रॉफी डी equals to I had or I would. Find in the text the contracted forms that stand for 2 different full form and say what these are. पार्ट में वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ढूंढिए जिसके 2 अलग अलग फुल फॉर्म हैं और बताइए कि वो क्या हैं. Speaking. Here is an extract adapted from a one-act play. इस उदाहरण में एक 1-act play से लिया गया उदाहरण है. In this extract, angry neighbors who think Joe, the inventor's new spinning machine, will make them lose their jobs, come to destroy Joe's model of the machine. इस एक्सट्रैक्ट में नाराज़ पड़ोसी जो सोचते हैं कि जो इन्वेंटर यानी जो आविष्कारक की नई स्पिनिंग मशीन के वजह से वो अपनी नौकरी खो देंगे, इसलिए वो जो के मॉडल को नष्ट करने के लिए आते हैं. You have just seen how contracted form can make a written text sound like actual speech. आपने अभी देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखित शब्दों को कैसे स्पीच जैसे बना सकता है. Try to make this extract sound more like a real conversation by changing some of the verbs back into contracted form. इस उदाहरण में verbs को contracted form में बदलकर इसे ऐसा बदले कि यह वास्तविक कॉन्वर्सेशन जैसा लगे. Then speak out the lines. फिर पंक्ति बोलें. The door is flung open and several men tramp in. डोर खुला और कई मनुष्य अंदर आए. They carry sticks and one of them, Hob, has a hammer. उनके पास छड़ी है और उनमें से एक के पास जिसका नाम होब है उसके पास हैमर यानी हथौड़ा है. मोब.
Now where is your husband, mistress? आपका पति कहाँ है, मैडम? Mary, in his bed. He is sick and weary. You should not harm him. अपने बिस्तर में, वह थके हुए और बीमार हैं, उन्हें परेशान मत करिए। Hope, we are going to smash his evil work to pieces. Where is the machine? हम उसके बुरे कामों का टुकड़ा टुकड़ा करने आए हैं, कहाँ है उसकी मशीन? Second, on the table yonder. मेज पर है उधर। Hob, then here is the end of it. Hob smashes the model. Mary screams. तो यहाँ इसका अंत है। हॉब ने मॉडल को तोड़ दिया और मैरी चिल्लाई। हॉब, एंड नाउ फॉर योर हस्बैंड। और अब तुम्हारे पति के लिए। मैरी, नेबर्स, ही इज़ अ सिक मैन and almost a cripple. You would not hurt him. पड़ोसी, वह बीमार आदमी है और अपंग है, आप उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। Hob, he is planning to take away our daily bread. We will show him what we think of him and his ways. वह हमारी रोज़ी रोटी हमसे छीन रहा है, हम उसे दिखाएंगे कि हम उसके बारे में और उसके तरीक़ों के बारे में क्या सोचते हैं। मैरी, यू हैव ब्रोकन हिज मशीन, यू हैव डन इनफ। आपने उनकी मशीन तोड़ दी, आपने बहुत कर दिया। राइटिंग, नाउ यू नो वॉट अ डायरी इज़ एंड हाउ टू कीप वन। अब आपको पता है कि डायरी क्या होती है और इसे कैसे रखते हैं। कैन यू कीप अ डायरी फॉर अ वीक रिकॉर्डिंग द इवेंट्स दैट अकर। क्या आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें आप एक हफ़्ते में हुई घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। यू मे शेयर योर डायरी विथ योर क्लास इफ़ यू विश टू। आप अपनी डायरी अपने कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं अगर आप चाहें। यूज़ द फॉलोइंग हिट्स टू राइट योर डायरी। निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग करें डायरी लिखने के लिए। दो योर डायरी इज़ वेरी प्राइवेट, राइट एज इफ़ यू आर राइटिंग फॉर समवन एल्स। हालांकि आपकी डायरी बहुत निजी है, पर इसमें ऐसे लिखिए जैसे आप किसी और को लिख रहे हैं। प्रेजेंट योर थॉट्स इन अ कन्विंसिंग मैनर। अपने विचार को एक कन्विंसिंग रूप में प्रस्तुत करें। Use words that convey your feelings and words that paint pictures for the reader. Be brief. उन शब्दों का प्रयोग करें जो अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें और ऐसे वर्ड जो आपके चित्रों का चित्रण करें। संक्षिप्त में लिखिए। Diary language has some typical features such as subject-like sentences. Got up late in the morning. Sentence fragments without subjects or verb. Too bad, boring, not good. Contracted form. There, I have, can't, didn't, etc. An everyday expression which people use in speech. डायरी की भाषा की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे कि सब्जेक्ट लेस सेंटेंसेस। सुबह लेट उठी। बिना किसी सब्जेक्ट या कार्य के सेंटेंस के टुकड़े, जैसे बहुत बेकार, उबाऊ और अच्छा नहीं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। दे एपोस्ट्रोफी आर ई, दे आर। आई एपोस्ट्रोफी वी ई, आई हैव। कांट, डिडंट, एक्सेट्रा। और रोज़मर्रा के एक्सप्रेशन जो लोग अपने स्पीच में यूज़ करते हैं। रिमेंबर नॉट टू यूज़ सच लैंग्वेज इन मोर फॉर्मल काइंड्स ऑफ राइटिंग। याद रखें कि ऐसी भाषा का प्रयोग अधिक औपचारिक फॉर्मल चीज़ों के लेखन में ना करें। लिसनिंग। योर टीचर विल
read out an extract from the diary of Samuel Pepys given on the next page about the Great Fire of London. आपके शिक्षक लंदन की एक विशाल आग के बारे में सैमुअल पीप्स की डायरी का एक उदाहरण पढ़ेंगे. As you listen, complete this summary of the happenings. सुनने के बाद समरी को पूरा करें. Summary. This entry in the diary has been made on blank by blank. The person who told Pepys about the fire was called blank. She called at blank in the morning. Pepys went back to the sleep because blank. Pepys rose again at blank in the morning. By then about blank houses had been burned down. The fire had spread to blank by London Bridge. Pepys then walked to the blank along with Sir J. Robinson blank. In this lesson, what we have done, हमने क्या किया? First, diary writing is one of the best ways to practice writing. डायरी लेखन का प्रयास करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है. Students do not have to think up or imagine what to write about. छात्रों को क्या लिखना है वह सोचना या फिर इमेजिन नहीं करना पड़ता. They only have to find words to write about what has happened. उन्हें बस कुछ शब्द ढूंढने पड़ते हैं यह बताने के लिए कि क्या हुआ. Initiate your students into the habit of keeping a diary. अपने छात्रों को डायरी रखने की आदत डालें. Second, Anne Frank's diary became a public document after World War II. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एने फ्रैंक की डायरी सार्वजनिक दस्तावेज बन गई. Discuss with your students diaries which became historical documents such as Samuel Pepys diary. अपने छात्रों के साथ उन डायरियों पर चर्चा करें जो ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई, जैसे सैमुअल पेप्स की डायरी. You may draw students' attention to different types of diaries. Example, private diary, general diary. अपने विद्यार्थियों का ध्यान विभिन्न प्रकार की डायरियों की ओर आकर्षित करें, जैसे निजी डायरी, सामान्य डायरी. आर्मी ऑफिसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, लॉयर्स, मोटरिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स कीप अ जनरल डायरी to record events that happen during the day and events that are scheduled for the day, such as appointments, meetings, things to be done, etc. सेना के अधिकारी, व्यवसाय, डॉक्टर्स, अधिकारी, वकील, मोटर चालक, पुलिस अधिकारी दिन के दौरान होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड करने के लिए एक सामान्य डायरी रखते हैं, और घटनाएं जो दिन के लिए निर्धारित है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, उसमें लिखते हैं. थर्ड, पैसेज फॉर लिसनिंग एक्सरसाइज. द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666. लंदन की महान आग 1666. सितंबर 2 लॉर्ड्स डे 2 सितंबर भगवान दिवस. जेन कॉल्ड अस अप अबाउट 3 in the morning to tell us of a great fire they saw in the city. जेन ने हमें सुबह के लगभग 3 बजे कॉल किया शहर की बड़ी आग जो उनने देखा उसके बारे में बताने के लिए.
So I rose and slipped on my nightgown and went to her window and thought it to be on the back side of Marke Lane at the farthest. But being unused to such fire as followed, I thought it far enough off, and so went to bed again and to sleep. इसलिए मैं उठा और अपना नाइट गाउन पहनकर उसकी खिड़की पर गया और सोचा कि यह मार्क लेन के पीछे की तरफ है, सबसे दूर, लेकिन इस तरह की आग के लिए अनुपयोगी होने के कारण मैंने सोचा कि यह बहुत दूर है, तो मैं अपने बिस्तर में जाकर फिर से सो गया. About 7, rose again to dress myself and then look out of the window and saw the fire not so much as it was and further off. लगभग 7 बजे फिर उठा तैयार होने के लिए और खिड़की के बाहर देखा और देखा कि अब आग उतनी नहीं है जितनी थी. By and by Jane comes and tells me that she hears that above 300 houses have been burned down tonight by the fire we saw, and that it is now burning down Orfish Street by London Bridge. तभी जेन आई और बताने लगी कि उसने सुना है कि आज रात जो आग उनने देखी उसमें 300 से अधिक घर जल गए हैं और अभी यह लंदन ब्रिज के फिश स्ट्रीट में सभी चीज़ जला रही है. So I made myself ready presently and walked to the tower, and there got up upon one of the high places, Sir J. Robinson's little son going up with me, and there I did see the houses at that end of the bridge all on fire, and an infinite great fire on this and the other side of the bridge. इसलिए मैं तैयार हुआ और टावर पर चला गया और वहाँ एक ऊंचे स्थान पर गया. सर रॉबिन्सन का छोटा बेटा मेरे साथ जा रहा था और वहाँ मैंने पुल के उस पार घरों को जलते हुए देखा और ब्रिज के इस पार और दूसरी पार अनंता बड़ी आग को देखा. From the Diary of Samuel Pepys. What can you do? आप क्या कर सकते हैं? After they have completed the lesson, including the writing exercise, a student can ask to make a diary jotting from the previous day. पाठ पूरा करने के बाद राइटिंग एक्सरसाइज के सहित छात्रों को पिछले दिन के लिए एक डायरी बनाने के लिए कहा जा सकता है. Perhaps you could also write a diary entry describing what happened in school class on the previous day to share with the class. Try and make it amusing and interesting. शायद आप एक डायरी भी लिख सकती हैं जिसमें स्कूल और क्लास में क्या हुआ है पिछले दिन वो लिख सकते हैं. क्लास में प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करें इसे इंटरेस्टिंग और मजाकिया बनाने के लिए. करेक्ट स्टूडेंट्स पेजेस. दे मे बी अलाउड टू साइन देयर नेम्स और मेक इट एनोनिमस एज दे विश एंड पुट देम ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड टुगेदर विथ योर पेज फॉर एवरीवन टू रीड. छात्रों के पेजेस को इकट्ठा करें. छात्र अपने पेजेस में अपना नाम भी लिख सकते हैं या फिर गुमनाम भी रख सकते हैं और उसे क्लास नोटिस बोर्ड पर अपने पेज के सहित लगा दें सबके पढ़ने के लिए.